السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست میں گایوں کے تحفظ کے لیے مثالی شیلٹرز، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ تلنگانہ جاگرتی کے دفتر کا کویتا نے کیا آغاز۔ KCR کو کالیشورم نوٹس کے خلاف 4 جون کو احتجاج کرنے کا اعلان۔ KCR کے اوپر مکھی بیٹھے گی تو برداشت نہیں کیا جائے گا، کویتا کی پریس کانفرنس۔ دنیا کی اگلی حسین ترین خاتون کو آج پہنایا جائے گا تاج۔ ہائی ٹیکس ارینا میں رنگا رنگ پروگرام۔ مادھوپور میں 21 سالہ نوجوان کا قتل، ماں کی سالگرہ کے دن افسوسناک واقعہ۔ اور ممنوع ای سگریٹ کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب، بھاری مقدار میں سگریٹ ضبط۔ وارث گڑہ میں خاتون سارق گرفتار، مسروقہ زیورات ضبط۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ریاست میں ماڈل گاؤں شیلٹر بنائے جائیں گے۔ ریاست میں گایوں کے تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اس اجلاس میں ایک ایکشن پلان تجویز کیا گیا۔ ایک وقت مقررہ میں گایوں کے تحفظ کے لیے مثالی شیلٹرز بنانے کی ہدایت دی گئی۔ ضلع رنگا ریڈی کے معین آباد منڈل کے
एमके पल्ली में कायम किए जा रहे गौ शेल्टर के डिजाइन के बारे में वजीर आला ने चंद तब्दीलियां की और इस शेल्टर को अंदरून 4-5 दिनों में खतियत देने को कहा। पहले मरहले के तौर पर महकमे हैवानात के अहाते यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ज़रई यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, मंदिरों की निशानदही की जाएगी जहां खुली जमीन दस्तयाब हो, गायों के लिए कुदरती माहौल हो, चरने के लिए घास हो। तरजीहन 50 एकड़ जमीन की निशानदही की जाए। ये शेल्टर्स आला मेयारी हों। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वी शशादरी, श्रीनिवास राजू, वज़ीर आला के सेक्रेटरी पंचकाराज, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी सरफराज अहमद, कलेक्टर रंगारेड्डी, नारायण रेड्डी और दीगर आला ओहदेदार इस इजलास में शरीक थे। बीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल के कविता ने तेलंगाना जागृति के नए दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कविता ने अपने शौहर के साथ खुसूसी पूजा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर को कालेश्वरम कमीशन के नोटिस जारी करने के खिलाफ 4 जून को इंदिरा पार्क पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कम से कम जय तेलंगाना तक नहीं कहा। हमारी बदकिस्मती है। रेवंत रेड्डी कम से कम अब भी जय तेलंगाना बोलें और जहदकारों को खिराज पेश करें। जय तेलंगाना न बोलने वाले वजीर आला ने ओहदे पर बैठने का कोई हक नहीं है। कविता ने कहा कि राजीव युवा विकासम के नाम को तब्दील करें, इससे राजीव गांधी का क्या ताल्लुक है। 2 जून को वजीर आला रेवंत रेड्डी गोदावरी के पानी पर वाज़ेह ऐलान करें। कविता ने कहा कि कालेश्वरम नोटिस नहीं है, कांग्रेस कमीशन है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना का हर शख्स परेशान है। उन्होंने कहा कि 20 को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जदोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ के लिए जागृति जदोजहद करेगी और केसीआर पर मक्खी बैठेगी भी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जागृति तंजीम शुरू की 18 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पहले अशोकनगर में इसका दफ्तर था, अब इसको बंजारा हिल्स पर तब्दील किया गया है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल जायजा कमेटी के इजलास को महज खानापूरी करार देते हुए हुकूमत के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जीएचएमसी हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा इजलास में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, कलेक्टर ज़िला हैदराबाद और दीगर आला ओहदेदार अकबर ओवैसी के तरक्याती कामों में नक़ाइस और सुस्त रवी से मुतालिक सवालात का जवाब न दे सके। कायदे मुक़न्नना ने इंद्रम्मा इल्लो, सिविल सप्लाई, बारीक चावल, वाटर वर्क्स, नालों की सफाई के ताल्लुक से हुकूमत को सख्ती से घेरा। उन्होंने इजलास को महज खानापूरी करार देते हुए हुकूमत को संजीदगी के साथ काम करने का मुतालबा किया। तेलंगाना काउंसिल के अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी ने कहा कि केसीआर तेलंगाना अवाम के मफादात को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम जब तक है उस वक्त तक बीआरएस पार्टी रहेगी। जो कुछ हो रहा है इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। पार्टी का जो भी फैसला होगा केसीआर लेंगे। 2 जून को तेलंगाना भवन में यौम तासीस तकरीब होगी। 2 जून को साबिक वजीर हरीश राव कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम केसीआर की क़यादत के हक़ में है। केसीआर हुकूमत के बारे में अगर मुबाहिस होंगे, कांग्रेस और बीजेपी के सियासी बुनियादें हिल जाएंगी। कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, इसके बजाय बीआरएस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए साजिश का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये वाज़ेह नजर आता है कि रफ़ाइल तैयारे नुकसान का शिकार हुए थे, लेकिन हुकूमत इससे इनकार कर रही है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सीडीएस ने कहा था कि जंगों में इस तरह के नुकसान का होना फितरी बात है। इसके बावजूद भी हुकूमत रफ़ाइल तैयारों के गिरने को छुपा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत ने अब तक इस बात की वजाहत नहीं की कि हिंदुस्तान की हुकूमत और डीजीएमओ से पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने क्यों जंगबंदी का ऐलान किया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इंडियन एयर फोर्स की जो चीफ है, उन्होंने एयरफोर्स की सेवरल प्रॉब्लम्स मीडिया में बताए हैं। और जैसे अब एयरफोर्स का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ फाइटर स्क्वाड्रन्स है 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स है, और एक्चुअली इंडिया हैज अभी 31 फाइटर स्क्वाड्रन्स है इंडिया के पास। और उन्होंने ये अपनी कंसर्न दिखाया है
कि ये जो अभी वो गैप फिलअप करने के लिए HAL ने जो तेजास मार्क 1 डिलीवर करना है वो बहुत ही स्लो चल रहा है और वे बिहाइंड शेड्यूल है। इसके अलावा उन्होंने जनरली जो इंडिजिनाइजेशन है उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने बोला है कि ये इंडिजिनेशन ठीक है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को जो एयरक्राफ्ट और वेपनरी और ये सपोर्ट चाहिए, इतना जो उनकी शेड्यूल है उनकी शेड्यूल की उस हिसाब से नहीं आ रहा है। देयर वेल बिहाइंड शेड्यूल व्हाट आर द सप्लाईज। देन उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इंडिजिनेशन प्रोजेक्ट्स है वो अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस पे प्लान हो रहे हैं और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो नहीं है जो टाइम पे वो डिलीवरी हो रहा है टू द इंडियन एयरफोर्स। तेलंगाना बीजेपी के MP मुमलिकती वजीर बी संजय ने कहा कि BRS बदउनवान पार्टी है, इस पार्टी से इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS में जो फिल्म शुरू हुई है इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि 6 गारंटियों पर बहस न हो इसलिए ये नया हरबा शुरू किया गया। बी संजय ने कहा कि रेवंत रेड्डी का बयान देश से गद्दारी है, मुल्क की फौज के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी को मौका देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कांग्रेस और BRS कितनी भी साजिश कर लें, बीजेपी को कोई रोक नहीं सकेंगे। बी संजय ने फिर इस बात को दोहराया कि अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हमले में मुलव्विस ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका को 11 साल लग गए थे, लेकिन पहलगाम हमले के दहशतगर्दों को 15 दिनों के अंदर पकड़ा गया है। हालांकि अब तक इस बात की कोई तस्दीक नहीं की गई है कि पहलगाम हमले के दहशतगर्द पकड़े गए हैं। अपोजिशन इस बारे में सवालात उठाती आ रही है। दुनिया की हसीन तरीन खातून का अब से कुछ देर में इंतखाब होने वाला है। हैदराबाद के हाईटेक्स कन्वेंशन एरेना में 72वीं बावकार मिस वर्ल्ड 2025 के फाइनल का रंग बिरंगी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। फाइनल में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की 108 हसीनाएं आखिरी राउंड में हिस्सा लेंगी। मौजूदा मिस वर्ल्ड चेक रिपब्लिक से ताल्लुक रखती हैं और वो फाइनल के बाद अपनी जानशीन को ताज पहनाएंगी। वाज़ेह है कि 1951 में बरतानिया से मिस वर्ल्ड मुकाबलों का आगाज हुआ था। हिंदुस्तान ने अब तक 6 मिस वर्ल्ड के खिताबात जीते हैं। 1996 में रीटा फारिया, 1994 में ऐश्वर्या रॉय, 1997 में डायना हाइडन, 1999 में एकता मुखर्जी, साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर ने खिताब जीता था। इस बार फाइनल में बॉलीवुड स्टार्स भी अपना जलवा दिखाएंगे। फिल्म स्टार सोनू सूद को उनकी खिदमात पर अवार्ड दिया जाएगा। वाज़ेह है कि 1 महीने के दौरान हैदराबाद के बशमूल रियासत के मुख्तलिफ मुकामात का मिस वर्ल्ड के शुरका ने मुशाहिदा किया था। चार मीनार, लाड बाजार और चौमहल्ला पैलेस में भी हसीनाओं ने हेरिटेज वॉक में हिस्सा लिया था। बताया जा रहा है कि हर इलाके के 10 सेमीफाइनलिस्ट रहेंगे और होते होते मुकाबला फाइनल में 5 हसीनाओं तक महदूद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, Scotland, Serbia, BRS पार्टी के लीडर प्रवीण कुमार ने सोशल वेलफेयर के अकामती तालीमी इदारे में तलबा से बैतुल खला साफ कराए जाने के मामले पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस सिलसिले में एक ऑडियो मंजर आम पर आया था। इसी के तनाजुर में प्रवीण कुमार ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला अपना बैतुल खला खुद साफ करते हैं? क्या उनके बच्चे अपने स्कूल में बैतुल खला साफ करते हैं? किस तरह से गरीब और पसमानदा तबके के तलबा से बैतुल खला साफ कराए की बात कही गई। इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। जहीराबाद के सरकारी हॉस्पिटल में बर्क़ी न होने की वजह से डॉक्टर्स के मोबाइल फोन की रोशनी में मरीजों का इलाज का एक वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि हॉस्पिटल में जनरेटर भी दस्तयाब नहीं है। मुकामी अवाम का कहना था कि बर्क़ी की मजदूदी से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
جس پر ہریش راؤ نے کہا کہ ایک طرف برقی کٹوتی سے عوام پریشان ہیں، مریضوں کا علاج موبائل کی لائٹ میں کیا جا رہا ہے۔ ظہیر آباد کے ایریا ہاسپٹل میں 300 سے زائد مریض رجوع ہوتے ہیں۔ ایریا ہاسپٹل کا یہ حال ہے تو دیہی علاقوں کے ہاسپٹلز کے حالات کیا ہوں گے؟ 1.5 سال کی حکومت بستر مرگ پر ہے، غریب عوام مؤثر علاج نہ ملنے سے پریشان ہے۔ حکومت بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اقلیتی طبقے کے طلباء و طالبات کو جاریہ تعلیمی سیزن کے دوران اوورسیز اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور، جرمنی، جنوبی کوریا، جاپان، فرانس اور نیوزی لینڈ میں پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی کورسز کے لیے منتخب امیدواروں کو 20 لاکھ روپے کی اسکالرشپ اور ایک طرف کا کرایہ 60,000 روپے دیے جائیں گے۔ ایک طرف کا کرایہ یا 60,000 روپے دیے جائیں گے۔ یہ اسکالرشپ 2025 سال تعلیمی سیزن کے لیے ہوگی۔ ڈائریکٹر مائنورٹیز ویلفیئر شیخ یاسمین بادشاہ IAS کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق اس سلسلے میں درخواستیں 1 جون سے 30 جون شام 5 بجے تک قبول کی جائیں گی۔ درخواستوں کے ادخال اور اسکالرشپ کے بارے میں تفصیلات تلنگانہ ای پاس ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جو طلباء 1 جنوری 2025 سے 30 جون 2025 کے دوران بیرونی یونیورسٹیز میں داخلہ لے رہے ہیں یا داخلے لے چکے ہیں، وہ بھی اس اسکالرشپ کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ تعلیمی صداقت ناموں اور دیگر دستاویزات کی تنقیح آنے والے دنوں میں کی جائے گی۔ اگر کسی نے جھوٹے صداقت نامے داخل کیے ہیں، یہ ثابت ہونے پر ان کے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات دفتر ڈائریکٹر اقلیتی بہبود سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تیلگو فلم اداکار ناگرجنا نے ہفتے کے دن اپنی اہلیہ عاملہ کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ان کے قیام گاہ پہنچ کر ملاقات کی۔ ناگرجنا نے اپنے چھوٹے بیٹے اکھل کی شادی کا دعوت نامہ وزیر اعلیٰ کے حوالے کیا۔ وقف قانون 2025 کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اتوار 1 جون کو دوپہر 2 بجے سے 5 بجے شام دھرنا چوک اندرا پارک پر احتجاجی دھرنا منظم کیا جائے گا۔ صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے حیدرآباد اور اضلاع کے عوام سے اس دھرنے میں کثیر تعداد میں شریک ہو کر اس قانون کے خلاف احتجاج درج کرانے کی اپیل کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان مقننہ نے بھی چلو دھرنا چوک کے عنوان سے عوام سے اس احتجاج میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ اس دوران ممتاز عالم دین و امیر جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد اور سابق امیر جامع نظامیہ مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری کے علاوہ یونائٹڈ مسلم فورم کے صدر مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم، جنرل سیکرٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار، پرسنل لاء بورڈ کے ارکان ڈاکٹر متین الدین قادری، مولانا نثار حسین، حیدر آقا، مولانا مسعود حسین مجتہدی اور دیگر قائدین نے شہریان حیدرآباد بالخصوص عامة المسلمین سے کثیر تعداد میں اس احتجاج میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ ائمہ مساجد و خطیب صاحبان سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے متعلقہ مساجد میں اس دھرنا احتجاج میں شرکت کی مصلیان کرام کو ترغیب دیں، وقف کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے سیاہ قانون کے نقائص سے واقف کروائیں۔ وقف کے قانون میں جو تبدیلی لائی گئی اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے لیے ٹینک بینڈ پر ایک اجتماع رکھا گیا اور وہاں سب کو جمع ہونے کے لیے دعوت دی گئی۔ تمام طبقات، اسلام کے مسلمانوں کے تمام طبقات اس میں شریک ہیں۔ میں بھی ہم تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں اور اس کو کامیاب بنائیں تاکہ حکومت پر واضح ہو کہ مسلمان کس قدر اس سے ناراض ہیں۔ میں عامة المسلمین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ کثرت سے اس دھرنے میں شرکت کر کے دھرنے کو کامیاب بنائیں، اور سیکولر بھائیوں سے بھی خواہش ہے کہ وہ بھی شریک ہوں تاکہ دستور میں جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کا تحفظ ہو۔ شکریہ۔ 1 جون 2025 2 بجے تا 5 بجے اندرا پارک دھرنا چوک پر ایک احتجاجی اجلاس منعقد ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے یہ احتجاج منظم کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے خیر العباد مفتی سید صادق محی الدین فہیم کی بحیثیت صدر نشید، بحیثیت صدر
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम गुजारिश है कि इस एहतजाज में आप ज़रूर शिरकत करें। क्या वक़ाफ़ी जायदाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास मिल्क हैं और अल्लाह की इस मिल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुसलमान को मैदान में आना ईमान का अहम तरीन हिस्सा और मिली फरीज़ा है। इस फरीज़े की अंजाम दही के लिए आमतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त की जाती है 1 जून शाम 3 बजे था 5 बजे धरना चौक इंदिरा पार्क पर भारी जमईयत के साथ जमा होकर 100% इसको कामयाब बनाएंगे। मजलिस की जानिब से हल्का असम्बली नामपल्ली में सालार मिल्लत सब्सिडी गैस सिलेंडर स्कीम के तहत आवाम को कम कीमत पर गैस सिलेंडर्स तकसीम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि इब्तदाई 100 अफराद को गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। उनका कहना था कि ताहाल ज़ायदस 500 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मज़कूरा स्कीम सिर्फ पूरे हल्का असम्बली नामपल्ली के राय दहिंदों के लिए मख्तस की गई है। उन्होंने बताया कि लक्की ड्रा के तहत 10 अफराद को सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया गया है। दरख्वास्तें दाखिल करने की कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाए। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम ने बलदिया के अहदेदारों के हमरा चटकनीपुरा और उनके आसपास के इलाके जात का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उन्हें खस्ता रोड्स के बारे में तवज्जो दहानी की, जिस पर उन्होंने तयक्कुन दिया कि मज़कूरा कामों को बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने नुमाइंदगी करके सीसी रोड के कामों की मंजूरी हासिल की थी, लेकिन कामों को शुरू करने में ताख़ीर हो गई थी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की रहनुमाई में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने GHMC डिप्टी कमिश्नर AMOHS और सैनिटेशन अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर साफ सफाई के मौज़ूआत के अलावा दूसरे उमूर पर बात की गई, जिस पर तमाम सरकारी महकमे जात के अहदेदारों ने उन्हें तयक्कुन दिया कि वो एक दूसरे से ताउन करते हुए ईद उल अज़हा के मौके पर ज़रूरी इक़दामात करेंगे। इस मौके पर महकमे पुलिस के एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र नगर जोन के अलावा रुकन बलदिया मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद, साबिक़ कॉरपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मलकपेट चौराहा अकबर प्लाजा के पास सीवरेज लाइन को हुए नुकसान और पानी के बहाव की वजह से ट्रैफिक जैम को देखते हुए पुलिस ने अवाम को मुतबादिल रूट इख्तियार करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुतल्लिका पुलिस अहदेदार ने कहा कि चादरघाट से बराह मलकपेट दिलसुख नगर जाने वाले अवाम को मुतबादिल रूट इख्तियार करना चाहिए। सीवरेज के मरम्मती काम के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। उन्होंने कहा कि पानी के जमा होने से सड़क को भी नुकसान हुआ है। वाज़ेह है कि जुमा से सीवरेज लाइन को होने वाले नुकसान की वजह से ट्रैफिक में खलल देखा जा रहा है। इससे पहले कमिश्नर बलदिया आरवी कर्नन, हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ, वाटर वर्क्स के ED मैंक मित्तल, ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर जोएल डेविस के अलावा आला अहदेदारों ने मलकपेट अकबर प्लाजा के पास सीवरेज के बहाव से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। अहदेदारों को मसले की यकसुई के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी गई। कालापत्थर पुलिस स्टेशन की चंदूलाल बारादरी के एक अपार्टमेंट में चौथे फ्लोर पर आग लगने का वाकया पेश आया है। कालापत्थर पुलिस इंस्पेक्टर खलील पाशा ने मीडिया को बताया कि जुमा और हफ्ते के दरमियानी शब मुगल हाइट्स अपार्टमेंट की चौथी मंजिल के फ्लैट में उस वक्त आग लगी जब फ्लैट में घर वाले मौजूद नहीं थे। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा इमारत की चौथी मंजिल के तमाम रहने वालों का तख्लिया करा दिया गया। फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग बुझा दी। मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम को इत्तला मिलने पर वो मुकाम वाक़या पहुंच गए और आग की शिद्दत का जायजा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात कर रही है। फेसबुक पर दोस्ती और नाजायज ताल्लुकात पर गांव वालों ने लड़की और उसकी दोस्त को बांधकर मुबैना पिटाई की। तफसीलात के मुताबिक पेदापल्ली सुल्तानाबाद की साकिन मोनिका की भोपालापल्ली के स्वामी के साथ दोस्ती हो गई। गुज़िश्ता 3 दिनों से स्वामी मोनिका के घर में मुकीम था। गांव वालों को पता चला तो उन्होंने दोनों को बांध दिया और फिर सबक सिखाया। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
माधोपुर में 21 साला नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की रात मणिकुंडा का साकिन जयंत गौड़ अपनी मां की सालगिरह मनाने के लिए दोस्तों के साथ एक सुनसान मुकाम पर आया था। दोस्त मैनौशी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस दौरान 3 अफराद आए और उनके दरमियान बहस तकरार हुई। तीनों ने जयंत पर हमला किया। जख्मी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। माधवपुर पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने IS सदन पुलिस के साथ मिलकर ममनुआ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की फरोख्त में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सैयद इदरीस, आमिर खान और असद गैर कानूनी तरीके से सिगरेट फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड के 109 सिगरेट्स, 2 टू व्हीलर्स और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त की गई अशिया की मालियत 6 लाख रुपए बताई गई है। वारिसगुड़ा पुलिस ने खातून सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूक़ा अशिया और नकद रकम जिसकी मालियत 8 लाख रुपए है बरामद कर ली। एडिशनल DCP ईस्ट जोन नरसैया ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक खातून जी विजया को बलारम के इलाके से गिरफ्तार कर लिया, जो रियल एस्टेट ताजिर की एजेंट बताई जाती है। उन्होंने बताया कि मकान के मालिक बैरून मुल्क गए हुए हैं। उन्हें पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया कि उनके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, जबकि अलमारी भी खुली हुई है। उन्होंने बताया कि मुलजिमा ने अपने रिश्तेदार, दोस्तों और जान पहचान के लोगों के मकानों में भी इस वक्त सरकी की वारदातें अंजाम दी थीं, जब घर में कोई भी नहीं होते। वो मास्क पहनकर घर में दाखिल होती थी। पुलिस ने मुलजिमा के कब्जे से करीब 8 तोले के सोने के जेवरात और ज़ायदस 1 किलो चांदी की अशिया, नकद रकम 38,000 रुपये बरामद कर ली हैं। उनका कहना था कि मुलजिमा के खिलाफ 2 केसेस दर्ज हैं। पुलिस एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात कर रही है। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन और बंडलागुड़ा पुलिस की टीम ने ममनुआ मेफ्टेटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन के फरोख्त में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बंडलागुड़ा का साकिन जबरान अंसारी को मुसद्दक़ा इत्तला पर गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 19 इंजेक्शंस और एक 2 व्हीलर जब्त की गई। पुलिस ने मेडिकल हॉल्स को भी इंतबाह दिया है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये इंजेक्शन फरोख्त न किए जाएं। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना वेमुलवाड़ा की राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर के पास गौशाला में मुतअद्दिद गायों की मौत हो गई है। बताया गया है कि दम घुटने की वजह से और धक्कमपील की वजह से इन गायों की मौत हुई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गौशाला के शेड में 1150 गायों को रखा गया था, जबकि यहाँ गुंजाइश सिर्फ 400 गायों की रखने की थी। मुकामी अवाम का कहना था कि मुकामी जिम्मेदार मौसर तौर पर गायों की निगहदाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गायों की अमवात हुई है। कलेक्टर संदीप कुमार झा ने वेटनरी डॉक्टर्स के हमरा मुकामी वाक़या का मुआयना किया है। गायों को इज्तिमाई तौर पर दफना दिया गया है, लेकिन लोगों में अभी भी काफ़ी बरहमी देखी जा रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी,
जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में गायों के तहफ्फुज़ के लिए मिसाली शेल्टर्स, वजीर आला का जायजा इजलास। तेलंगाना जागृति के दफ्तर का कविता ने किया आगाज। केसीआर को कालेश्वरम नोटिस के खिलाफ 4 जून को एहतजाज करने का ऐलान। केसीआर के ऊपर मक्खी बैठेगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया की अगली हसीन तरीन खातून को आज पहनाया जाएगा ताज। हाईटेक्स एरेना में रंगारंग प्रोग्राम। माधवपुर में 21 साला नौजवान का कत्ल, मां की सालगिरह के दिन अफसोसनाक वाकया। और ममनुआ ई सिगरेट की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, भारी मिकदार में सिगरेट जब्त। वारिसगुड़ा में खातून सारिक गिरफ्तार, मसरूका जेवरात जब्त। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।